جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी ये पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर है, कलेक्शन ये ऑथोराइज सेंटर है फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। तो उसके आज ओरिएंटेशन हमने कहा आपसे ज़रा बुला के दोस्तों को बताएं। दूसरा जो है कम्युनिटी सपोर्ट फंड, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी बगैर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के वो सरवाइव नहीं करती। और तीसरा जो है, जो मेरा ड्रीम है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी जो इंश्योरेंस के बारे में, तो वो थोड़ी मैंने मालूमात ली हैं ताकि आज की नशस्त में वो भी मैं बताऊंगा। तो आप तमाम को मैं हजरात को वेलकम कहता हूँ जी। तो तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। तो कारी उसामा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत के लिए तशरीफ़ ले आएँ। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ تو یہ جی آج جو ماشاءاللہ ہم آئے ہیں اس میں ایک جذبے کے تحت یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ایک پاکستانی کمیونٹی کا پروفائل جو ہے ان دا سوسائٹی اس کو اپ لفٹ کرنا، ہمارا سب کا آبجیکٹیو یہی ہے۔ تو آج جو ہم نے جن کو دعوت دی ہے، ہمارے دفار میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم نے بلایا، ہیلتھ کیئر ورکرز، جامعہ دفار کے جو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو ہم نے بلایا تاکہ پروفیشنلز ہوں۔ اور اس کے بعد جو مین ہے ہیلتھ انشورنس، چونکہ یہ میری جو مشاہدات میں یا تجربات میں ہے، جو ہمارے ہاسپٹل میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، لیبرر ہیں، ورکرز ہیں، وہ ہاسپٹل کے بل پے نہیں کر سکتے، وہ ایسی کنڈیشنز میں ایوائڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور جو سب سے زیادہ مجھے پینچ کرتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کوئی پاکستانی کا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ چندے جمع شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو ڈیتھ کیسز میں طارق صاحب جو ہیں، طارق چودھری صاحب صحیح ٹائم پہ آئے، وہ بات تذکرہ ہوا تو یہ بھی آ گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ آتھورائز بندے ہیں، یہ ڈیتھ کیسز کا فرام زیرو سے ٹل اس کے ڈسپوزل آف دا ڈیڈ باڈی ٹو دا پاکستان، یہ سٹیپ زیرو سے سٹارٹ اپ ہوتے ہیں۔ تو جو ان کے مشاہدے میں اور ہمارے مشاہدے میں ہے، جیسے کچھ ہوتا ہے تو لوگ واٹس ایپ پہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پیسے لینے کے، اکاؤنٹس دینے کے، تو ایون ڈیڈ باڈی جا چکی ہوتی ہے لیکن یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایز اے کمیونٹی یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے کہا کہ جی اس طرح کا ایک انشورنس سسٹم ہو۔ میڈیکل پلانز ہیں، اس کے موٹے پوائنٹس یہ ہیں کہ سال میں آپ کے 55 ریال ہے پریمیم، ایج 18 سے یا 16 سے 60 تک، اس میں اگر آپ 54 ریال دیں گے تو آپ کو بینیفٹس ہوں گے، جس میں جیسے میں نے کہا آؤٹ پیشنٹ آپ کو 500 ریال کی لمٹ ہوگی سال میں، اور اگر ان پیشنٹ ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو 3000 عمانی ریال آپ کو ملیں گے، مطلب اس میں آپ کا کوٹا ہے۔ اس طرح کے جو لائف ہے، کوئی ورکر ہے، ڈرائیور ہے ہیوی ٹرک، اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیورنگ ورک وہ فوت ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں 5000 ریال وہ ملیں گے، 2000 ریال اگر نان ایکسیڈنٹل ہے۔ وہ اس کی جو پریمیم ہے وہ
2 साल की 15 रियाल है, तो पर ईयर अगर 7 रियाल में वो रिस्क फ्री हो जाते तो ये भी एक बड़ी, मैं समझता हूँ, कम्युनिटी के लिए अच्छी होगी। हर चीज़ ऑन बोर्ड होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी इंशाल्लाह। और हम एक, क्योंकि जब जज्बा हो, जब इरादे पुख्ता हो तो मंजिलें आसान होती हैं और अल्लाह ताला की मदद हाल शामिल होती है। शुक्रिया। अकबर साहब का, अकरम साहब का, तारिक साहब का और सब हजरात का कि इस तरफ तवज्जो फरमाई और उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं देख रहा हूँ ये चंद मुख्तसर से अरसे में कि इन हजरात ने सेहत के मौजू पर, कभी डेंगू का मसला है, कभी जो है ब्लड डोनेशन का सिलसिला है, अब ये अपना वक्त देते हैं। हम कहते हैं शायद हमसे कुछ मांगते हैं, वो हमें दे रहे हैं कि इस बीमारियों से आप कैसे बचेंगे, और मुल्क का भी नाम है, आपका भी नाम है, सवाब का सवाब है। ऐसा किया जा सकता है कि कहाँ अगर किसी का पर्सनल वहाँ की जो कम्युनिटी सेंटर है मस्कत का, कि जैसा कि आपने कहा कि वो एम्बेसी वाले तो बिजी हो रहते हैं, वो उस दिन नहीं कर पाएंगे, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, वहाँ कम्युनिटी सेंटर जो है हमारा पाकिस्तान, हमने तो यहाँ तक वो कि कोई बंदा उनकी हमारा रेगुलर बेसिस पे लेके और जीटीसी पे चढ़ा ये तकरीबन 2-3 हफ्ते हमने ऐसे किया, तो मलिक साहब का वहाँ पर अपना ही बंदा है, हम जीटीसी में भेजते थे, उनका वो बंदा वहाँ से रिसीव करके उसी वक्त एम्बेसी में चला जाता था। 2 से 3-4 घंटे वो वहीं बैठा रहता था। वो 2-3 हफ्ते हमारा बहुत ही बेहतरीन सर्विस रहा, लोग बहुत खुश थे। हमने कहा ये सारा हम करेंगे, आप हमें इजाज़त दें, लेकिन उन्होंने कहा फिलहाल ओमान पोस्ट पे आप करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये एम्बेसी से चाहते हैं कि हमारे जो पेपर है यहाँ से हम अपना बंदा वहाँ पे रखते हैं, ये हमारी गारंटी है। जितने भी पेपर जहाँ से जाए वो हमारे बंदे को जो पेपर है वो एक दिन वहाँ पे रखे, दूसरे दिन वो हमें वो टेस्टिंग करके दे दे, हमारा बंदा वहाँ से लेके पार्सल करके यहाँ भेज दे। तो इसमें क्या है, पब्लिक का भी फ़ायदा है, ठीक है, और एम्बेसी का भी नाम होगा, हमारे ऑफिस का भी नाम होगा, वो हमारी गारंटी है। अगर किसी के पेपर गुम होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, तो हमारी गारंटी है। हम एम्बेसी से ये इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे सलाला के लिए हफ्ते में 2 दिन रखें। दोबारा बताइएगा। अच्छा, 10 साल का जो अर्जेंट है, 10 साल का अर्जेंट, उसकी सरकारी फीस जो है, जो कि आपके कार्ड से, अकाउंट से कटेगी, वो 27 रियाल के लगभग है तकरीबन, और 5 रियाल ऑफिस की सर्विस चार्जेस, और नॉर्मल जो है वो 22 रियाल है और सर्विस चार्जेस 5 है। हमारी शनाख्ती कार्ड का अर्जेंट जो है वो 22 रियाल सरकारी फीस है, यानी $56.6, और नॉर्मल जो है वो $36.6। और अटेस्टेशन वगैरह, मोड वगैरह, अटेस्टेशन जो है वो मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। अटेस्टेशन की फ़ीस जो है मुख्तलिफ है। अब मिसाल के तौर पे निकाहनामा है, बे फॉर्म है, इसकी 3-3 रियाल है, मतलब एम्बेसी की और हमारी और कोरियन मिला हुआ। और डिवोर्स का, डिवोर्स सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इसके 8 रियाल हैं, 5 रियाल एम्बेसी के हैं और 3 रियाल वो हमारे हैं। और इसके अलावा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो अगर यहाँ के किसी इदारे में पढ़ा, यहाँ का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर वो 10 रियाल है कि 15 रियाल है, क्योंकि वो कम आते हैं, ज़्यादातर हमारे पास पाकिस्तान वाले आते हैं। तो पाकिस्तान का अगर किसी इदारे में पढ़ा है, वहाँ का सर्टिफिकेट है, तो वो 5 रियाल एम्बेसी की और 3 रियाल हमारे, और जो यहाँ का है तो वो एम्बेसी के 10 रियाल है और हमारे 5 रियाल है।